Okay, good afternoon, everyone. Welcome to the last day of our workshop on digital pedagogy tools for Navodaya teachers by Effective Education Vertical under DRIVE, an initiative by Principal Scientific Advisor PSA to the Government of India and Innovative Center, University of Delhi. Over the past few days, we have dwelled into the realms of innovative teaching method, explored the digital landscape, and embraced the power of technology to enhance education. I remember a quote from none other than Mr. Bill Gates that technology is not a silver bullet, it's a tool. If you are a carpenter, the right tool can help you build a house. If you are a musician, the right tool can help you make music. It depends on how you use it. So, if we teachers can use these tools effectively, this technology can enhance teaching learning experience for all and result in brilliant future minds. No doubt, the human element will always be a powerful tool for connecting with students and building relationship, but the best way to learn is by trying new things and seeing what works for you and your students. With this thought, I request today's resource person, Mr. Aman Besla and Mr. Shashank Besla, to take this forward session, whose title is Teaching in Technicolor, Mastering AI Tools for Vibrant Lesson Plans. Good afternoon, everyone. So my name is Sasank, and today we are going to discuss about digital lesson planning. So today we are going to learn about digital lesson planning. Now I am going to tell you what is lesson planning. Lesson planning is helps teacher structure their lesson to deliver content effectively and ensuring that student grasps the material. जो लेसन प्लानिंग होती है हमारी, वो टीचर्स के लिए हेल्प करती है स्टूडेंट को कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, और हम इससे इंश्योर करते हैं कि हम जो स्टूडेंट्स है वो मटेरियल को ग्रेस्प कर पा रहे हैं और कितना इफेक्टिवली हमारा कंटेंट है. इट्स अलाउ टीचर्स टू अलाइन देयर लेसन्स विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स. जो लेसन प्लानिंग होती है वो टीचर्स को अलाउ करती है, अलाइन करती है देयर लेसन प्लान की स्पेसिफिक लर्निंग के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में. लेसन प्लानिंग enables teachers to accommodate diverse learning style and abilities to student. जो टीचर्स अपने लेसन प्लान बनाते हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि स्टूडेंट्स की जो डाइवर्सिटी है वो किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग वो लेसन प्लान बनाते हैं कि हम जो क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं तो उनके बारे में हम कैसे उनके लिए किस प्रकार से हम बना सकते हैं लेसन प्लान. Planning helps teacher effectively manage the limited time available for each lesson. It fosters reflection and improvement as teacher can evaluate the effectiveness of their lesson and make adjustment over time. Now I am going to tell you importance of digital lesson planning. Digital lesson planning enables the integration of multimedia resources such as video online tools. जैसा कि अभी पिछले हमारी जो ये वर्कशॉप है इसमें आपने पिछले कुछ दिनों में सीखा है कि हम ऑनलाइन वीडियो कैसे बनाते हैं बच्चों के लिए, और सी मैप हम कैसे बना सकते हैं. तो उन सबको हम एक साथ कनेक्ट करके एक अच्छा लेसन प्लान बना सकते हैं फॉर स्टूडेंट, उसे डिजिटल लेसन प्लान में ऐड कर सकते हैं. डिजिटल लेसन प्लानिंग अलाउज फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी टू मटेरियल्स, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर टीचर्स टू मॉडिफाई शेयर एंड एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर. डिजिटल लेसन प्लान में हम जो हमारे मटेरियल होते हैं, जो हमारे रिसोर्स होते हैं, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको हम शेयर कर सकते हैं किसी को. अगर ये डिजिटल नहीं होगा तो फिर हम उसको मॉडिफाई करने में बहुत मुश्किल होती है, इजीली मॉडिफाई नहीं कर पाते. Teachers can collaborate with colleagues, sharing lesson plans, ideas, and resource more easily across different schools and even globally. जो हम डिजिटल लेसन प्लान बनाते हैं उसमें हम उसको अपने कलीग्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. उसमें जैसा आप किसी क्लास में किसी टॉपिक पे अपना लेसन प्लान बनाते हैं और फिर उसी टॉपिक पे कुछ पिछले सालों में भी किसी टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो वो उनकी जो उसने डिफरेंट तरीके से अपना लेसन प्लान बनाया ना, आप लोगों ने अपना डिफरेंट से बनाया है, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं उसके साथ.
Digital lesson planning tools help in organizing and structuring teaching materials, making it easier for educators to plan, track progress, and manage their time effectively. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन प्लान, आप सबको सबको पता है कि लेसन प्लान का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। उस इंट्रोडक्शन के बाद हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर हम बच्चों की प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए असेसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ एंगेजमेंट टेक्निक्स बनाते हैं जिससे हम स्टूडेंट्स को एंगेज रख सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजीज करते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं मतलब वो एक बार में नहीं समझ पाते किसी चीज को। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस चीज को समझाने के लिए डिफरेंट मेथड से उनको समझाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लोजर फेस ऑफ लेसन, हम लेसन को किस प्रकार से क्लोज करते हैं, उसका कंक्लूजन कैसे करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द लेसन, लेसन का जो हमने बच्चों को पढ़ाया उसका इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो हमने पढ़ाया वो कितना इफेक्टिवली पढ़ाया है, कितना बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। और स्टेप्स जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही स्टेप्स होते हैं उसमें कि पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, उसके बाद असेसमेंट, फिर डिजाइन करते हैं कोई एक्टिविटी बच्चों को इंगेज रखने के लिए। adapting the students need, selecting instructional material, instructional delivery, assessment and evaluation, रिफ्लेक्शन, और उसके बाद क्लोजर एंड समरी, और देन हम होमवर्क पे आ जाते हैं। तो हमारा जो डिजिटल डिजिटल लेसन प्लान बनाने के लिए हमने एक वेब बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है जिससे हम डिजिटली लेसन प्लान बना सकते हैं। हम इससे दिस प्लेटफॉर्म typically allow educators to create, organize and store lesson plans online। हम ऑनलाइन ही किसी भी सब्जेक्ट पे एक लेसन प्लान बना सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। It enables integration of various educational resources such as image, videos, document and external links to supplement lesson plan. The ability to collaborate with other documents, share lesson plan and access a library to share resource can be key features. This fosters a community where teachers can learn from each other and adapt existing materials for their own use। इसके बाद हम अपने जो हमारा टूल है हम उस पे आएंगे। उसकी कुछ मतलब जो स्टार्टिंग है वो इस प्रकार से होगी। आपको इस पे फ्री साइन अप करना है एक बार। तो नाउ माय फ्रेंड इज अमन बैसला इज टेलिंग यू अबाउट द टूल। Thank you, Sasank, for briefing everyone about this platform. And good afternoon, everyone. So today we are going to discuss about the platform that is iLink. So as we can see, this is the platform, and this is the first view of our platform. There is the site where we can go and explore this platform. So अब हम इसके बाद साइन अप करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन इंटरफेस है प्लेटफॉर्म के लिए वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस इंटरफेस में सबसे फर्स्ट अगर मैं टॉप लेफ्ट में देखता हूँ तो यहाँ पर जनरेट एन एआई लेसन, ये जो हमारा आइकन है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक लेसन प्लान हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आइकन में आप देख सकते हैं कि इनवाइट यूजर्स, ये इसी तरह से जैसे जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं जो कि जूम, इसी तरह से हम एक लिंक प्रोवाइड करके अपने यूजर्स को, और इस पर हम जो भी हमारे यूजर या पार्टिसिपेंट्स है वो एनरोल हो जाएंगे। उसके बाद है क्रिएट अ कोर्स। क्रिएट अ कोर्स इन द सेंस कि अगर हमको एक ऑनलाइन, जैसे जूम है यहाँ पर मीटिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके जहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट के साथ एक डिजिटल क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्रिएट अ कोर्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज जैसे कि कोई भी पीडीएफ हो या कोई और हमारे पास पीपीटी हो, या जो हमने वीडियोस बनाई हैं, या जो प्लेटफॉर्म पे अभी हमने इन्फोग्राफ्स बनाना सीखा, उन सबको हम अपलोड कर सकते हैं। देन अगर मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो यहाँ पर एक कैलेंडर का भी ऑप्शन मुझे मिल जाता है कि अगर इन फ्यूचर हमें कोई क्लास या ऑनलाइन मीट रखनी है तो इस कैलेंडर पर वो आपको शो होती रहेगी। नेक्स्ट अगर टॉप लेफ्ट में, सॉरी बॉटम लेफ्ट में देखता हूँ तो यहाँ पर एडमिन कंसोल आप देख पा रहे होंगे। एडमिन कंसोल में क्या होगा कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या उनकी जो भी एनरोलमेंट है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर
हम इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर मोर करना चाहें तो आपके पास चैट बॉक्स में एक लिंक होगा या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, तो वहां से हम इस प्लेटफॉर्म को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो प्लीज एवरीवन ज्वाइन देयर। सर, इसमें ये लिखा आ रहा है यूज योर परमानेंट लिंक टू टीच ए क्लास, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन? सर तो आई थिंक यू ऑल हैव लॉग्ड इन। Sir, हियर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू, प्लीज। तो सर आपको यहाँ पे टॉप राइट में एक दिखाई दे रहा होगा न्यू क्लास। न्यू क्लास पे जाने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू क्लास में जाएंगे तो हमारा जो लिंक है, तो उससे आपने लॉग इन कर लिया था, तो उसी लिंक के थ्रू आप क्लास में एंटर हो जाएंगे। तो एक बार ट्राई करके देखिए सर। तो सर क्या होगा कि सेम अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, अगर उससे लॉग इन करोगे डायरेक्ट तो स्क्रीन ये स्विच हो जाएगी, तो हम जूम से हट के हम डायरेक्ट उसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे फिर इससे। तो इसमें आ रहा है स्टार्ट न्यू क्लास या क्रिएट क्लास फॉर लेटर, दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें न्यू क्लास में। सर इसके बाद क्या स्टार्ट नाउ पे जाना है क्या? सर आप एक बार ना अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आया होगा, उससे डायरेक्ट ज्वाइन करो, आप डायरेक्ट क्लास में आ जाओगे। अटेंशन हेयर सर। सर मुझे लगता है कि सबको उस लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई नहीं, हम इसी थ्रो में आपको बता दूंगा किस तरह से उसको यूज करना है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू। आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई नहीं, वहां से मैं एंड कर रहा हूँ सब। जूम पर आप आपसे आ जाइए सब। सो आई एम शोइंग द स्क्रीन हेयर सर। वहां पर प्लेटफॉर्म पे सबको स्विच करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहीं पर देख लीजिए सर। सर ये व्हाइट बोर्ड आ गया, इसके बाद क्या करना है? सर आप बस यहीं स्क्रीन पर देखिए, मैं वो बताता रहूंगा, आप उस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है सबसे स्टार्टिंग में, तो लॉग इन किया होगा तब आपने ये आ गया होगा सर आपके सामने। अपकमिंग और क्लासेज। या अगर फिर से सर मैं एक बार आपको, ये इनिशियल पे सर बिल्कुल ये इस पर आए होगे सर आप स्टार्टिंग में, जब आपने लिंक से, मतलब वो क्लासरूम का लिंक था, जब क्लासरूम से डाला तो आप डायरेक्ट क्लास में एंटर हुए, लेकिन जो इस मेन लिंक जो हमारी पीपीटी में है उससे आप अगर ये लिंक नहीं आया करोगे तो सर। डायरेक्ट। हाँ मैम, वो इश्यू ये था कि वो डायरेक्ट क्लासरूम का लिंक था, तो मैं उधर एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन सबको वहाँ प्रॉब्लम हो रही है स्विच करने में। तो अब बिल्कुल बेसिक से मैं यहीं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ। अगर सबसे स्टार्टिंग में हम हाई लिंक डालते हैं तो ये प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आप टॉप राइट में देखेंगे फ्री साइन अप। जैसे ही मैं फ्री साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से मेरे पास या तो ईमेल एड्रेस अगर मैंने आईडी बनाई हुई है, वरना मैं डायरेक्ट गूगल साइन अप विद गूगल करके, ऑलरेडी सबके मोबाइल फ़ोन में एक आईडी और लॉगिन होती है, तो वहाँ से क्लिक करके मोबाइल या सिस्टम जो भी, अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप लैपटॉप वगैरह, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक आप ये देख पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Continue. तो सर एक प्लेट, ये जो मैंने क्लास की थी वो आप यहाँ से स्टार्ट न्यू क्लास, या फिर इन फ्यूचर अगर आपको कोई क्लास शेड्यूल करनी है तो यहाँ से हम क्लिक करके कर सकते हैं, जिस तरह जूम में करते हैं इसी सेम पैटर्न है। उसके बाद कोर्सेज में अगर हम जाते हैं, तो जितने भी मेरे कोर्सेज है वो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। वो कोर्सेज क्रिएट कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए, जनरेट एन एआई लेसन, यहाँ पे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है मैम, सबको देख पा रहे हैं? इज नहीं, इट विजिबल? Not visible, sir. सो ओके सर, 1 सेकेंड। कोर्सेज दिख रहा है सर, कोर्सेज। ओके सर, सेकेंड वेट। अब दिखाई दे रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, वो हाँ। थोड़ा टेक्निकलिटी की वजह से उसमें Yes, तीन ही yes. कोर्सेज शो कर पा रहा था, वो तीन ही आइकन। तो देखिए फर्स्ट पे जनरेट एन एआई लेसन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक चैट व्यू है और एक है क्लासिक व्यू। चैट व्यू में क्या करेगा, ये आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर लेसन। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी डालता हूँ, ये मैंने डाल दिया छत्रपति शिवाजी महाराज, ये मुझसे पूछ रहा है कि हु इज द ऑडियंस फॉर दिस लेसन। तो अगर मैं 7th ग्रेड में पढ़ाता हूँ, 8th ग्रेड में पढ़ाता हूँ, तो मैं वो डाल दूंगा, सपोज मैं यहाँ डालूँ 10th ग्रेड स्टूडेंट्स।
सो हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, मतलब मुझे टाइम लिमिट क्या है। आई थिंक मैं एक नॉर्मल पीरियड 40 मिनट्स का होगा तो 40 मिनट्स में डाल देता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट शिवाजी। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, इसने मुझे एक लेसन प्लान का फॉर्मेट तैयार करके दे दिया। सर ये चैट व्यू में जाके करना है क्या? हाँ सर, चैट व्यू में हो या क्लासिक को भी अभी एक्सप्लोर करेंगे, फर्स्ट मैं आपको चैट व्यू बता रहा हूँ बस। तो तो देख चैट सकते हैं सर। हाँ जी सर, चैट व्यू के तो बाद में एक मैसेज आ रहा है, हाय हाय आई एम हियर टू जनरेट द लेसन प्लान, ये आया है। उसके बाद में क्या करना है? हाँ सर, उसमें लास्ट लाइन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर लेसन प्लान, ये लिखा होगा ना सर, मतलब टॉपिक डालना है अपना। वो हम जब ब्रेकआउट सेशन करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, एक बार पहले आप देख लीजिए सर, वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा सर। तो इस तरह से राइट साइड में हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें हम देख सकते हैं कि ड्यूरेशन, 10th ग्रेड स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, ओपनिंग ऑफ द लेसन इसने बता दिया कि बीइंग द लेसन बाय आस्किंग स्टूडेंट इफ दे हैव हर्ड अबाउट शिवाजी महाराज, दिस एंड दिस, इस तरह से इंट्रोडक्शन फेज। फिर उनकी लाइफ एंड अचीवमेंट्स 5 मिनट 15 मिनट्स में। व्हाइट बोर्ड ये जो है ये इसी ऐप का एक टूल है, इसको भी देखते हैं सर। ऑडियो विजुअल्स अगर हमारे पास है, कोई यूट्यूब पर वीडियो उनको दिखा दे, या फिर कोई सेशन उसके बाद असेसमेंट के लिए, तो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद सर एक इसमें सेकंड है क्लासिक व्यू। क्लासिक व्यू में जो हमारा चैट व्यू था उसमें ऐसा लग रहा था कि टू वे कम्युनिकेशन है, कि एक मुझसे कोई पूछ रहा है एआई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक पैटर्न में आपको बता दे कि यहाँ पर टॉपिक रखिए, फिर ऑडियंस, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं कोई देखता हूँ दूसरा बनाने, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये मान लेते हैं इक्वेशन। हमारा टॉपिक है। ऑडियंस है हमारी 8th स्टैंडर्ड ले लेते हैं, 8th क्लास। ड्यूरेशन आई थिंक 40 मिनट्स ही रखते हैं सर, एक नॉर्मल पीरियड के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट विल बी एबल, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम टाइप भी कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर जनरेट करते हैं तो ये खुद भी हमको ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो सर इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, आप राइट साइड में देख सकते हैं। इट्स जनरेटिंग मोर सर। सो इट इज हेयर ऑन द राइट साइड। अब इसके जो फीचर है वो ये अच्छा है कि सर अगर हमको लेसन प्लानिंग में अपनी कोई नीड्स के अकॉर्डिंग या डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो यहीं पर मुझे साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में टॉप में, एडिटिंग का। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, एडिट, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी जो ये ओपनिंग असेसमेंट है इसकी टाइमिंग में 5 to 6 मिनट रख सकता हूँ। या मुझे कुछ और भी चेंजेस करने हैं इस पूरे लेसन प्लान के अंदर, अपने अकॉर्डिंग या बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है सर, तो ये हमारा तो लेसन प्लानिंग के लिए। अगर हम बैक जाके और इसके फीचर्स देखते हैं, उसके बाद इनवाइट यूजर्स, तो जो लिंक अभी जिस तरह से मैंने आपको सेंड किया है, तो इसमें 3 कैटेगरीज है हमारे पास, कि एक एडमिन हो आप टीचर हो या आप स्टूडेंट हो। तो अगर एज अ स्टूडेंट किसी को ज्वाइन कराना है तो इस लिंक को कॉपी करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप में या मेल पर हम सेंड कर सकते हैं। अगर हम एज अ टीचर किसी को ज्वाइन कराना है इसमें, तो कॉपी लिंक करके यहाँ से डायरेक्ट उनको सेंड कर सकते हैं। सेम एडमिन, अगर एज अ एडमिन कराना है तो यहाँ से भी हम उनको सेंड कर सकते हैं। सर या 1 मिनट सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो जो क्लासिक व्यू का सर आप बता रहे थे ना, थोड़ा सा वॉइस की वजह से वो समझ नहीं पाया। वो मेरी स्लाइड नो इशू कांस्टेंट, सर, मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ। वो स्लाइड कांस्टेंट होगी सर। कोई नहीं सर। क्लासिक व्यू में बेसिकली कुछ नहीं सर, जो हम चैट व्यू में वन बाय वन ही हमसे पूछता है कि पहले लेसन बताइए फिर ऑडियंस बताइए, ये सब क्लासिक व्यू में एक मुझे पूरा सिस्टमेटिक इसने पहले से ही दे दिया कि यहाँ पर आपको टॉपिक पुट करना है, यहाँ पर ऑडियंस बताने की कौन सी क्लास के बच्चे हैं, ड्यूरेशन आपको कितनी चाहिए उसके टॉपिक के रिगार्डिंग, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। बस इस पर क्लिक करके जनरेट कर दीजिए सर, बहुत सिंपल, उसी की तरह वो जैसे हमने पिछला वाला लेसन प्लान आया था उसी तरह से राइट साइड में आ जाएगा वो। इसमें सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव अपन एक से ज्यादा डाल सकते हैं? बिल्कुल सर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आएंगे सर। अब अगर आप जनरेट करेंगे तो देखेंगे, जब ये खुद जनरेट करके देखा तो उसमें 2 से 3 जनरल, सॉरी मतलब ऑब्जेक्टिव देगा वो 2 से 3 खुद ही जनरेट करके सर। ओके। ओके सर।
तो उसके बाद सर इनवाइट यूजर में, इसके बाद यहाँ पर लिंक है, अगर मुझे सर इनवाइट बाय ईमेल, तो मैं डायरेक्ट, अगर मुझे किसी बच्चे की ईमेल आईडी या किसी टीचर की पता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल करके उसको, सपोज इस तरह से मैंने डाल ली, तो मैं डायरेक्टली उसको ऐड कर सकता हूँ सर। मतलब उसको बिना लिंक के अगर किसी की मुझे आईडी पता है तो मैन्युअली मुझे फिर एक एक की फिर यहाँ पे करके ऐड मोर करना है, फिर और ऐड मोर करना है, तो इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि इससे अच्छा लिंक से ही अगर मैं एक बार सेंड कर दूँ तो जिसको भी एनरोल करना है वो डायरेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। या सर क्रिएट यूजर्स थर्ड इसका ऑप्शन है, उसमें क्या है कि नाम से हम किसी के भी नाम डालना, वहाँ पर उसको ईमेल एड्रेस डाल दे, उसका रोल डाल दे कि वो टीचर है, एडमिन है या स्टूडेंट है। कोर्स में नीचे से स्टेप टू कोर्सेज है, इसके लिए सर पहले कोर्सेज बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कोर्सेज में ऐड करने का इसमें क्या प्रोसीजर और क्या मतलब कोर्सेज में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सर आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको कि इनवाइट किस तरह से करना है किसी को भी अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर जो लेसन जनरेट होता है सर उसको अपन डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं सर कहीं? सर आप डाउनलोड इसमें ऐसा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करके डायरेक्टली किसी भी पीपीटी पे या वर्ड में या फिर वर्ड नोट्स में में हम कॉपी डायरेक्ट कर कर लो सकते सर, हो सकता है। कॉपी पेस्ट हो सकता है यहाँ से? हो हैं। अच्छा सकता सर, तो ठीक है सर। हाँ मतलब कॉपी पेस्ट सेलेक्ट टोटल करके उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे डायरेक्ट डाउनलोडिंग के लिए नहीं कि सेलेक्ट क्लिक किया और वो डाउनलोड हो गया हमारे सिस्टम में। उसके लिए हमको कॉपी पेस्ट करने में हो जाएगा सर वो। ओके सर। ओके सर, तो थर्ड वन इज क्रिएट अ कोर्स। क्रिएट अ कोर्स में क्या है सर, जैसे सिंपली हम क्लासरूम है कोई, मैंने मान लिया मैथ, मुझे मैथमेटिक्स के लिए टाइटल दिया टीचर, ये मेरी आईडी है सर इसमें पहले से, तो 001 एज अ टीचर इसमें आ गया सर। उसके बाद आई थिंक जैसे एक्सक्यूज ये मी यहाँ पे सर। हाँ जी सर। सर एक इश्यू था, जैसे आपने वो क्लासिक व्यू में लेसन प्लान जनरेट करके बताया था, हाँ जी सर। उसमें लेसन प्लान में जो है ग्रीन कलर से क्विज लिखा हो रहा था या व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ आ रहा था, तो उसका क्या यूज है वो बताएंगे? हाँ बिल्कुल सर, मैं इसी इसके बाद उसी को एक्सप्लोर करा रहा हूँ, बस सर एक सेकंड। वो जो सर मैंने अभी आपको लिंक सेंड किया था ना, हाँ हाँ। उसमें जो था वो व्हाइट बोर्ड पे ही क्लास हो रही थी उसमें डायरेक्ट, तो वो मैं बता रहा हूँ उसमें उसी टेक्निकल इशू की वजह से सब पहुंच नहीं पा रहे थे उस प्लेटफॉर्म तक, तो मैं इसी में स्क्रीन शेयर पे दिखा रहा हूँ आपको बस सर इसी के बाद। ठीक है सर, वो ऑप्शन जरूर बताइएगा, उसका हाँ कैसे सर यूज बिल्कुल करना सर, वही इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती भी है, वो वाला प्लेटफॉर्म जो है उसमें व्हाइट बोर्ड वाला, है। जरूर ठीक बताऊंगा सर। ठीक। ओके। तो सर यहाँ पे एज अ टीचर मैंने अपने आप को रखा है। अब इसमें एक स्टूडेंट में, इसके लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इनविटेशन लिंक था ना वो बच्चों को भेजना पड़ेगा। वहां से जैसे ही वो बच्चे आके एनरोल करेंगे तो उसके बाद ही मैं किसी की इसमें आईडी डाल पाऊंगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने रैंडम किसी की भी आईडी डाल दी तो वो इसमें हो जाएगा एनरोल। उसके लिए क्या है, पहले उसको प्लेटफॉर्म में एनरोल होना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसकी आईडी यहाँ पे डाल के उसको कोर्स के अंदर लेके आऊंगा। ठीक है सर। तो अभी इसके अंदर बस एक ही आईडी लगी हुई है, उसी को मैं यूज करके, आई थिंक सर एक और है शशांक नाम से है, ये रही सर, तो ये कंफर्म कर दिया। तो ये टूल्स का एक फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पर सर, देख पा रहे हैं सर आप। हाँ जी। तो इसके अंदर सर बेनिफिट क्या है कि अगर बच्चों को सबको एनरोल करा दिया मैंने अपनी क्लास के, तो इसमें मैं अपनी फाइल्स, अगर मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है, पीडीएफ अपलोड करनी है, तो मैं इस तरह से, जैसे ये स्क्रीनशॉट है कोई, ये अपलोड करना है तो ये आ गया स्क्रीनशॉट। उसके बाद कोई और पीडीएफ फाइल भी मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, या जो हमने ग्राफ्स बनाए थे, इन्फोग्राफ्स बनाए थे, या जो हमने एनिमेकर से वीडियोस क्रिएट की थी, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, या उसको यहाँ पे डाल सकते हैं तो बच्चे उसको डायरेक्टली यहीं से ही देख सकते हैं सर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसके पास। उसके लिए रिकॉर्डिंग्स, अगर कोई क्लास मैंने ऑनलाइन किया उसकी रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगी वो। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो एन रोल है इस कोर्स के अंदर जो हमने अभी क्रिएट किया है, तो अमन बैसला ही मेरी अभी एज अ टीचर में एनरोल्ड हूँ, और जो शशांक बैसला मैंने आपके भी सामने स्टूडेंट एज अ दिया था, तो वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे मुझको कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, तो जो जो बच्चे इस कोर्स के अंदर हैं सर।
उसके लिए सर डिस्क्रिप्शन, अगर कोर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे लिखनी हो यहीं पे तो हो जाएगा। तो आई थिंक सर इट इज क्लियर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो अब एक बार देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने स्क्रॉल किया था जो लेसन प्लान्स मैंने बनाए थे वो इधर दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बाद जो कोर्सेज थे वो मैंने अभी एक मैथमेटिकल टूल नाम से बनाया, वो आपको इधर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे कोई इस पे क्या होगा कि कोई क्लास मुझे शेड्यूल करनी है, क्रिएट ए क्लास फॉर लेटर, यहाँ से टाइमिंग ये लिंक हो जाएगा जिसके लिए बच्चों के लिए भेजने के लिए, और जो टाइमिंग आएगी वो यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी। जैसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड देख लेते हैं एक बार। ये मैंने स्टार्ट की क्लास, न्यू क्लास है, फ्रेश क्लास है 45 मिनट्स के लिए। जो जूम और इसकी वजह से ये देखिए, तो सर ये जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था वो डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए था, कि डायरेक्ट एज अ क्लास मैंने उसको बनाया था, तो डायरेक्ट आप इसी क्लास के अंदर जंप करते। एक क्लास हो गई सर, तो कुछ लोगों का हो भी गया था, तो इस पे आ जाएंगे सर हम। उसके बाद इसमें कुछ टूल्स हैं, अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो इस तरह से मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर सर मुझे इसको कुछ इरेज करना है सेलेक्ट करके, अगर मैं डिलीट प्रेस कर दूंगा ये डिलीट हो जाएगा। टेक्स्ट कुछ डालना है यहाँ से डाल सकते हैं, मतलब कि इसको एक्सप्लोर करके एक तरह से व्हाइट बोर्ड, जैसे हमारी क्लासेज में ब्लैक बोर्ड होते हैं उसी तरह से एक बोर्ड हमारे पास आ जाएगा। इसके जो एडिशनल फीचर्स है वो ये है कि इधर बिल्कुल बॉटम लेफ्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पर लेसन्स है, कैमरा, माइक ऑप्शंस हैं। आपको सर ये प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके सर। सर मुझे लगा अभी कुछ जो नीचे के टूल्स है वो शायद लास्ट टाइम दिखाई नहीं दे रहे थे, तो आई थिंक अब ये क्लियर है। लेसन से टूल्स अब ये दिखाई दे रहे हैं सर? Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. तो यहाँ पर लेसन्स पे अगर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो जो हमने लेसन बनाया था, अभी जनरेट किया था, वो हमारे राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास की टाइमिंग्स है, मतलब कि 5 मिनट में ओपन करना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन 5 मिनट का रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग मैच करके मैं अपनी क्लास को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकता हूँ। एक टूल तो सर इसका हो गया ये। उसके बाद मेरे पास, जैसे मैं जूम में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसी तरह से शेयरिंग का एक ऑप्शन मेरे पास मिल जाएगा। तो उसमें क्रोम टैब को आपको शेयर करना है, या इस विंडो को किसी को शेयर करना है, या आपको जो एंटायर स्क्रीन अभी खुली हुई है इसको शेयर करना है, तो यहाँ से 3 ऑप्शंस मुझको मिल जाएंगे। अभी मैं शेयर नहीं कर रहा, बस आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जूम से हम इसको दिखा पा रहे हैं। उसके बाद सर टूल्स। टूल्स में क्या है कि कोई जो हमारा असेसमेंट हुआ है, इसमें लेसन प्लान में देखता हूँ अगर मैं, एक असेसमेंट फेज भी होता है ये, या तो प्री नॉलेज के लिए या क्लास के फॉर्मेटिव असेसमेंट जो बोलते हैं उसकी लर्निंग चेक करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कुछ चेक करना है तो इस तरह से मैं एक क्विज जनरेट कर सकता हूँ। मैंने मान लिया व्हेन वाज एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेड। क्वेश्चन जनरेट किया, इसके ऑप्शंस मैंने डाल दिए 29 जुलाई 2020, और कोई भी एक रैंडम 1 नवंबर 2020। जैसे ही मैं, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इसका है। इसको पोस्ट क्विज कर दूंगा। यहाँ पर ड्यूरेशन हम इसकी सेट कर सकते हैं, 45 सेकंड के लिए चाहिए, 30 सेकंड्स के लिए चाहिए, या सिंपल क्लिक में एक आंसर देना है आपको, या फिर ट्रू फॉल्स बेस्ड आपकी क्विज होनी चाहिए, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। when was अगर सर मेरे पास दो ऑप्शन है तो दो में मैं चूज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से ऐड आंसर करके और आंसर ऑप्शन इसमें ला सकता हूँ। अब मैंने पोस्ट क्विज जैसे ही मैं करूँगा टाइम सेट करने के बाद, तो जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनके स्क्रीन पे ये आ जाएगा एकदम से। तो उसके लिए उनको आंसर सेलेक्ट करना होगा, इधर ए और बी। तो जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, इधर आंसर जो उसने सेलेक्ट किया, उसकी टाइम ड्यूरेशन भी आ जाएगी कितनी देर में सेलेक्ट किया है। तो एक
क्विज के लिए हमारे पास जैसे ये स्क्रीन आई तो 0% बच्चों ने ये लगाया, 0 ने ये लगाया। तो मतलब अभी हमारे पास है ही नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इसलिए तो हम देख सकते हैं कि एक्यूरेसी सबमिटेड करेक्ट कितने बच्चों ने किया है, तो सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से जर्नलिंग जो भी बच्चों की हुई है कि कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं कितने नहीं कर पा रहे, तो वो सारा डाटा एक तरह से एनालाइज होकर भी मैं उसको निकाल सकता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो इन द फ्लो जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं गैप्स है। तो एक टूल इसका ये हो गया। उसके बाद पोलिंग पोलिंग का टूल है सर, जैसे केबीसी में हम देखते हैं कि पोलिंग होती है और अलग अलग लाइफ लाइन्स भी होते हैं उसके अंदर, तो उसी तरह से एक पोल का ऑप्शन हमारी क्लास के लिए भी है। यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे उनमें एक पोल क्रिएट करा जाएगा, उनके बेसिस पर जो उनके रेस्पॉन्सेज होगा उसका डाटा फिर से मेरे सामने पॉपअप हो जाएगा। इसका थर्ड टूल है सर काउंट डाउन। काउंट डाउन इन द सेंस कि मैंने कि बच्चों को कुछ आंसर क्वेश्चन किया कि आपको इतनी देर में उसका जवाब देना है, हैंड रेज करनी है, ये काउंट डाउन इसको सेट करके हम लगा सकते हैं। उसके बाद फाइल्स है सर। फाइल्स मतलब कि अगर मुझे, जैसे मैंने कोर्स में भी एक फाइल अपलोड की थी और वही उसी तरह से कोई फाइल मुझे इस स्क्रीन पे खोलनी है, तो मैं स्क्रीन शेयर ना करके डायरेक्ट यहाँ से अपलोड न्यू फाइल करने के बाद कोई भी फाइल यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अपलोड न्यू फाइल करूंगा तो मेरा वो लो स्टोरेज ओपन हो जाएगा, उसमें से मैं कोई भी फाइल ड्रैग करके यहाँ पे ला सकता हूँ। तो इसमें एक फाइल साइज मैक्सिमम दिया हुआ है कि 200 MB तक हम मैक्स फाइल इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब लिंक्स। वेब लिंक्स मतलब कि अगर मुझे पास कोई डायरेक्ट लिंक है, मतलब मुझे ब्राउजर, जैसे कि मुझे या तो ब्राउजर पे जाना पड़ेगा अपने टैब पे, या फिर कोई भी लिंक मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर कर दूं, उसको लोड करते ही उसका जो स्क्रीन है वो मुझे यहाँ पे सामने दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट इज डाइस। डाइस कभी कभी हम मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी समझाते हैं या और किसी टीचर के लिए यूजफुल हो कि स्क्रॉल करना है कुछ, मतलब हिट एंड ट्रायल वाला कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूट्यूब। यूट्यूब के लिए भी एक एडिशनल फीचर है कि अगर हम डायरेक्ट कोई भी लिंक, जैसे एक लिंक मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, कंट्रोल भी करता हूँ तो यहाँ से जो मेरा यूट्यूब, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग, तो मतलब कि जैसे ही शायद लिंक में कुछ दिक्कत है, जैसे उस लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा तो डायरेक्ट मुझे किसी दूसरे ब्राउजर पे या यूट्यूब ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो मेन स्क्रीन पर ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही बच्चों को कोई भी वीडियो डिस्प्ले होने लगेगी। नेम रैंडमाइजर एक और टूल है इसके पास, जैसे कि अभी हम 60 पार्टिसिपेंट हैं, तो अगर हम सारे इसी प्लेटफॉर्म पे होते तो मुझे किसी से कुछ क्वेश्चन करना है रैंडम, कि ऐसा ना हो कि बाइस लगे, इसलिए मैं इस स्पिन को घुमा सकता हूँ। जिसके ऊपर भी ये आएगा तो उसी से हम किसी भी रैंडम क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जो हम पूछना चाहते हैं उससे पूछ लेंगे। अभी तो एक ही इसके अंदर एनरोल है तो बस एक अमन बैसला नाम से इसके साथ आ रहे हैं, वरना जो भी होगा इसके चारों तरफ वो सारे नेम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टूल वी हैव ग्राफिंग कैलकुलेटर। ये एक और बड़ा ही अच्छा इसका ग्राफिंग कैलकुलेटर है, तो मोस्टली जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर हम कैलकुलेशन कुछ भी करनी है या कोई भी बच्चों को ग्राफ दिखाना है, मान लिया मुझे कोई एंगल क्रिएट करना है, तो ये ऐसे इस तरह से इस टूल को यूज कर सकता हूँ मैं सर। कोई परसेंटेज या फिर कुछ और भी मुझे इसके अंदर टूल्स, मतलब कि ये खुद अपने आप में एक टूल बार है बहुत बड़ा, कि इसमें कोई फिगर बनानी है सर्कुलर, सर्कल विद सेंटर, इस तरह से एक्सपेंड करके, मतलब कि बहुत ही अच्छा टूल है जो मैथमेटिक्स के लिए हेल्प कर सकता है हमें। और भी बहुत सारे ट्राइंगल फॉर्म करना है, पॉलीगन, रेगुलर, इरेगुलर, तो मतलब कि मल्टीपल इसके अंदर खुद, इस टूल के अंदर खुद अपने मल्टीपल फीचर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोड एडिटर। कोड एडिटर्स जो हमारे सीएस के टीचर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, HTML, HCL, जावा, जावा स्क्रिप्ट,
लेस लेक्सॉन लिक्विड मतलब एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस, जिसको हम कोड डाल के उसको डी कोड कर सकते हैं, अपने बच्चों को डायरेक्टली सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अलग से प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, या कोई अलग से दूसरा सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कोडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहीं से जो हमारा कोड है टाइप करके उसको रन करा के बच्चों को समझा सकते हैं। आई थिंक सर एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर। यस सर। ओके सर। अगर कोई टूल आपको समझ में नहीं आया हो, ये इसमें 12 टूल्स हैं, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में खुद टूल के अंदर एक टूल्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम, मतलब कि खुद अगर हम एक बार करके देखेंगे तो और इजी होगा हमारे लिए, वरना जो इनका ओवरव्यू है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये सर अगर हम एक बार इसको भी देखते हैं। सर इसमें ये व्यू नाइस। क्या है सर? सॉरी सर। इसमें जो आपके जो टूल के पैरेलल में एक और आइकॉन बनाना है, व्यू। जूम ये वाला सर। नहीं सर, व्यू व्यू। ओके जो सर, टूल व्यू के व्यू पैरेलल मतलब सर। बनाना, हाँ। हाँ यस यस। सर, या आई गॉट इट सर। व्यू का मतलब अभी मैं व्हाइट बोर्ड शो कर रहा हूँ आपको, अगर साइड बार कर दूंगा तो जो भी मेरे पार्टिसिपेंट है वो मेरे राइट साइड में मुझे दिखने लगेंगे। इन द सेंस मतलब पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए बस ये। अगर गैलरी व्यू कर दूंगा तो जितने भी बाकी सब है, जैसे जूम में स्क्रीन सामने आए थे ये सामने आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड हट जाएगा सर। बस ये बेसिकली पार्टिसिपेंट को शो कर देखने के लिए, इसका मतलब लेसन प्लानिंग या हमारे टीचिंग में इसका कोई ऐसा खास रोल है नहीं, ये प्लेटफॉर्म के लिए है, खुद के लिए सर। तो पार्टिसिपेंट देखने हैं मुझे, अभी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ओके। टॉप राइट कॉर्नर में मेरे ये आइकन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें व्यू को गैलरी व्यू में या साइड बार में करता हूँ तो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, और इसी को अगर मैं थोड़ा सा और गैलरी में कर दूंगा तो व्हाइट बोर्ड हट जाएगा, बस मुझे पार्टिसिपेंट जितने भी है वो सब यहाँ दिखाई देने लगेंगे सर। सर इट हैज नो बिग रोल इन दिस प्लेटफॉर्म। क्लियर सर? Yes, sir. इज इट क्लियर सर? यहाँ पे भी देख पा रहे हैं सर राइट साइड में, तो बॉटम राइट के इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इनवाइट देख पा रहे हैं सर? बॉटम राइट में सर ये 6 ऑप्शन इधर भी हैं, एक बार इनको भी देख Yes, लेते हैं। sir. इनवाइट। इनवाइट मतलब कि जो ये हमारी मीटिंग चल रही है, अगर किसी के पास लिंक नहीं है तो इसको डायरेक्ट कॉपी करके फिर से हम एक बार किसी को इनविटेशन व्हाट्सएप पे या इसके मेल पे सेंड कर सकते हैं। रिवॉर्ड इन द सेंस कि जैसे हम बच्चों को एनकरेज करते हैं कि शाबाश आपने अच्छा किया, तो किसी ने क्विज का आंसर दिया है उसको हम जैसे रिवॉर्ड पे उसके नाम का भी हाँ तो ब्लैंक है, किसी के नाम के सामने क्लिक करेंगे तो एकदम से उसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर से एक रॉकेट टाइप या मतलब कि एक ऐसा कुछ आइकन जाएगा जो उससे पता चल जाए कि हाँ समवन इज एप्रिसिएटिंग मी, तो रिवॉर्ड वो हो जाएगा। चैट बॉक्स ये तो नॉर्मल है कि हम कोई चैट मैसेज कोई आ रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे दिखाई देगा। पीपल इन द सेंस कि पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, जो जो भी प्रेजेंट है वो सब दिखाई देंगे। सेटिंग्स मतलब बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड मुझे ब्लर रखना है, मतलब ये प्लेटफॉर्म के फीचर्स हैं बेसिकली। आउटडोर ये सब। लास्ट है सर एग्जिट। एग्जिट इन द सेंस कि जितने भी आई थिंक जो भी मैंने आपको बताया है इस वाइट बोर्ड से रिलेटेड, इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो आप सही से समझ गए होंगे। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके। सर एक डाउट है छोटा सा। हेलो। यस मैम। सर ड्यूरिंग क्लास जैसे एग्जिट बटन है, तो जी ये मैम। एग्जिट सिर्फ एडमिन कर पाएगा या बच्चे भी कर सकते हैं? नहीं मैम, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको भी एग्जिट है एक तो, एग्जिट क्लासरूम मतलब एडमिन निकल जाएगा यहाँ से, जी और एंड क्लास फॉर ऑल उससे सब निकल जाएंगे, मतलब ये तो मैं एडमिन हूँ तो मैं सबके लिए एग्जिट कर दूंगा ना फिर, तो एंड क्लास फॉर ऑल पे करके। जी जी जी, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना जैसे कि बच्चा एग्जिट कर दे हमें और क्लास में रहे बच्चे, नहीं 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 ऐसा नहीं मैम, होता ये है? सारा कंट्रोल एडमिन के ऊपर है, इसलिए प्लेटफॉर्म पे 3 कैटेगरीज है ना इसमें, स्टूडेंट टीचर और एडमिन। तो कुछ टूल्स एडमिन के लिए मैं एज एडमिन लॉग इन कर रखा है, तो ये जो मैक्सिमम टूल्स हो सकते हैं वो सभी हैं ये। ओके ओके जी सर। और जी मैम। दूसरा सर, ये जैसे टूल्स हैं, हमने कुछ भी किया ड्रॉ, जी मैम। क्या हम इनको सेव कर सकते हैं? मान लो मैंने कोई कोड रन किया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो मैं उसको सेव करना चाहती हूँ। मैम जो इस पे अभी हमने कोर्स में एक जनरेट किया था ना, उसमें अगर हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो उसकी हम्म। एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, तो उस एज अ रिकॉर्डिंग हम उस सारे को रख सकते हैं।
वो पूरा वरना मतलब अगर 40 मिनट रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ हाँ मैम, उसमें एक ऑप्शन बिल्कुल सेपरेट था, अभी हमने फिर से दिखा दूंगा मैं आपको, फाइल्स के नीचे रिकॉर्डिंग्स था ना, तो उसमें जो मीटिंग शेड्यूल हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी प्रॉपर। तो एक तो जी जी वो हमारे पास ऑप्शन है, या फिर अगर कोडिंग मुझे रखनी है तो फिर वही कॉपी पेस्ट वाला हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम। सर इसमें एक ऑप्शन प्रो है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ड्रॉ ऑन स्क्रीन। तो इट मीन्स वी कैन आल्सो अलाउ द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। या जी सर, प्लेटफॉर्म तो सर ये प्लेटफॉर्म के फीचर्स तो कुछ जैसे हम जूम यूज करते हैं कुछ सेम सेम है, लेकिन एडिशनल इसमें यही है बस कि हम एक प्रॉपर स्पेसिफिक टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना इसको, तो इसमें उसके फीचर्स एडिशनल है, वरना और अगर नॉर्मली जूम यूज करते हैं तो सिंपल है, उसी की तरह से हो जाएगा सब, क्योंकि हम फेमिलियर भी हैं उसको यूज भी करते हैं, तो डे टू लाइफ में तो इतना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसको यूज करना। ये टूल से एक बार अगर आप प्लेटफॉर्म, जरूरी नहीं है कि इसमें पार्टिसिपेंट हो, आप खुद भी एक कोई भी स्टार्ट क्लास करके खुद से एक इसका एक्सप्लोर कर सकते हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि आपको पार्टिसिपेंट बुलाने हैं तभी आप क्लास को ओपन कर पाओगे ये वाली, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हम एक्सप्लोर कर लेंगे सर। सर यही था कि भी जैसे क्लास चल रही लाइव, मान लो बच्चे भी हैं, तो हम उनको अलाउ कर देते हैं कि भी ये मैंने एक सम लिखी है, इसको सॉल्व करना है, चलो आप करो इसको, स्क्रीन पे वो करते हैं हाँ जी। हाँ सर, जब हमने अलाउ कर दिया लाइव। तो फिर तो वो बच्चे शैतान होंगे तो कर देंगे, वरना सर वो एक्सक्यूज में तो। सर, मुझे ये पूछना था, जैसे बच्चों को हमने अलाउ कर दिया ये अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए, जैसे सर ने भी अपना रखा कि भाई जैसे हमने कोई जी सम लिख दिया, बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, तो सारे जी सर। बच्चे एक साथ ही करेंगे तो सभी का उसमें विजिबल होगा कि बच्चे के इंडिविजुअल स्क्रीन पे वो विजिबल होगा? सर वो सभी के लिए होगा सर, क्योंकि ये स्क्रीन सब, अब जैसे पार्टी एडमिन एज एडमिन अलाउ करने का मतलब है वो आपने एज एडमिन उसको राइट दे दिया, तो अच्छा। अगर सब बच्चे उसको करने लगेंगे तो फिर सर सबसे डिस्टरबेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ओके सर। जी। एनी अदर डाउट सर, या शैल वी मूव फर्दर? एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें लेसन सर, यस मैम। जैसे क्लास में अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो वी हैव अ हाँ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड, जी बाय मैम। जब कोई बच्चा लिखता है तो कैन वी हैव अ जी कंट्रोल? मैम, आई थिंक जब यहाँ पे पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे जी तो पर्टिकुलरली अगर मैं ऑप्शंस पे है तो उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, कि सर हम वो इसी कैसे कर बच्चे को पाएंगे? तो मैम वो मैं सपोज जैसे आपको हम लोग बता। जो, सर हाँ एक जी। मेरा मतलब प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग जो है जूम की क्लास लेते थे हाँ और जी। हाँ कभी जी। कभी नेटवर्क पुअर वगैरह होता था तो समटाइम्स दे यूज टू राइट ऑल नॉनसेंस ऑन द जी मैम स्क्रीन। बिल्कुल। क्या ये जी चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर? मैम, अगर सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मैंने पार्टिसिपेंट के लिए बंद किया हुआ है तो वो बिल्कुल भी कोई इसको छेड़ नहीं सकता, जो मैं कर रहा हूँ बस वही करेगा। ठीक है, जैसे लेकिन भी ये अगर इसको अलाउ ऑफ हो करेंगे रखा, हाँ अलाउ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलरली जब, यही तो इसलिए मैं एक ज्वाइन करा स्टूडेंट रहा को था हम कि अलाउ लेकिन। करेंगे, जी मतलब अगर हम जी चाहें कि राकेश अगर इस चीज को सॉल्व करे तो क्या हम जी जी केवल एक पर्टिकुलर बच्चे को ही हम अलाउ कर सकते हैं क्या? जी मैम, जैसे ही पार्टी में उसी लिए तो अभी सभी को इसी पे स्विच करना चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे राइट साइड में पार्टिसिपेंट आएंगे ना तो हम उनकी जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, कि इस बच्चे को अलाउ कर दिया इसको नहीं किया, तो वो हो जाएगा मैम, यही फीचर है इसी का। ओके, थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेरी मैम? शैल मूव फर्दर सर? यस सर। सर ये चीज बहुत ही यूजफुल रही है, तो क्या आप हम लोगों को इसका जैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है, लाइक हाँ। बिकॉज आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद द कंप्यूटर, तो आप या अगर एक स्टेप बाय स्टेप अगर ऐसे करके अगर हमें नोट बना करके ऐसे अगर हमें फॉरवर्ड कर देंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू यूज दिस। फ्लो या चार्ट श्योर के मैम। फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। एग्जैक्टली, फ्लो चार्ट। या श्योर मैम, वी विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग इजियर फॉर यू। थैंक यू क्योंकि सर सर, इसमें, थैंक यू हाँ सो क्योंकि मच। सर इसमें जो लेसन प्लान वाला जो आया है वो इसकी अच्छी फीचर है सर, ये दूसरों में शायद या इतना नहीं हाँ था। जी सर, ये कि लेसन प्लानिंग के साथ ही हमें और जो व्हाइट बोर्ड इसका है, इसमें क्विज़ वगैरह पोलिंग वगैरह का, तो एक जो प्रॉपर हाँ ये लेसन भी प्लान अच्छा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये नहीं कि बस लेसन प्लान बना दिया अब हम उसको कैसे भी करा रहे हैं, उसके साथ जो इसके एग्जीक्यूशन प्लान से मतलब जो इसके फीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं सर।
सर इसमें बच्चों लेसन को प्लान का ज्यादा बेटर ये तो फ्यूचर। सिर्फ ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल है सर, जैसे फिजिकल क्लासरूम होती है उसमें ये फीचर कैसे अप्लाई करें? ये वाले सर। हाँ, ये तो क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो चलो हमने व्हाइट बोर्ड को शेयर कर दिया, सारा कुछ है, हाँ जी फिजिकल सर। क्लासरूम में कैसे इसको मतलब इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा इसके बारे में बताओ तो। सर बिल्कुल सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सर पहले तो अभी डिजिटल के लिए बात कर रहे थे हम, तो इसलिए मैंने आपको ये सारे फीचर जो मैक्स टू मैक्स हो सकते थे बता दिए। सर एक्सक्यूज अब मी सर, हमारे स्कूल में से सर स्मार्ट वन लैब है, सैमसंग सर स्मार्ट लैब है। 1 सेकेंड सर, पहले मैं एक बार सर की बात को बता दूं नहीं वरना सर, वो मैं भूल आपकी जाएगा वही मुझे। मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे हाँ सेटअप का मैं बढ़िया से बता पाऊंगा सर को। हाँ कि हाँ जैसे जी हमारे बिल्कुल। स्कूल में सैमसंग स्मार्ट लैब होते हैं, तो उनमें हम ये टूल्स यूज करके और वो अपना क्लासरूम वैसे वहां पर अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। या एब्सोल्युटली सर। ब्लैक बोर्ड नहीं होता तो कई बार हमें ये भी कहा जाता है कि आप ब्लैक बोर्ड यूज नहीं करें ड्यूरिंग द लेसन, तो इसमें व्हाइट बोर्ड एब्सोल्युटली टूल यूज सर। हाँ, करके हम उसको कर सकते हैं सर। क्योंकि सर आजकल तो टेक्नोलॉजी सर हर स्कूल में पहुंच ही चुकी है, केवीज में तो आई थिंक सर बिल्कुल होगी। स्मार्ट क्लास तो पूरे स्कूल में एक होती है, बाकी 14 क्लास होती है, सब स्मार्ट क्लास यूज थोड़ी कर सकते हैं एक साथ। तो हमारे पास में एक ऑप्शन है, जब बच्चे हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट है तो उसमें क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? स्मार्ट क्लास सर का तो जो होता टूल्स है। आपके डिजिटल एप्लीकेबल है उनको मैं बिल्कुल कहूंगा कि फिजिकली तो वो जा नहीं सकते, लेकिन सर एज ए एक्सपीरियंस टीचर या जो हमारे कंट्रोल है बच्चों को किस तरह से डील कर रहे हैं, तो उसको अपना एक्सपीरियंस को यूज करते हुए फिर सर हमको करने की कोशिश करनी पड़ेगी सर। क्योंकि सर जो हमारे टूल्स वो ऑनलाइन प्रेजेंट है वो उनको एज अ बेस मान करके हम कुछ करना चाहें, जैसे हमने क्विज पॉपअप की, तो अगर हम बच्चों को बोल दे कि अभी बस बिल्कुल शांत रहना, जो आंसर दे रहा है रेज करो हैंड, ये तो इसी तरह से कर सकते हैं, वरना सर एग्जैक्ट बिल्कुल हम इसी तरह से अप्लाई करना चाहें तो फिर डिजिटल और प्रैक्टिकल फिजिकल में सर डिफरेंस आ जाएगा। ओके सर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी सर? सर ये जो टैक्ट है ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूजफुल है, पर ऑफलाइन के लिए तो मतलब कि हम इसका बहुत ही कम यूज कर पाएंगे। हाँ जी सर, सर ये डिजाइन स्पेशली ऑनलाइन के लिए है। हम्म। Sir, as यस my सर। friends said that it यस is यस। useful for online classes only, absolutely my friends are right. But my या question is that suppose if we generate these AI generated lesson plan, जी सर। sometimes our officers might not accept because they will say that it is not competency based. जी सर। In that condition, what we should do? AI is स- also right. सर अगर आप एक बार इसके लेसन प्लान पे फिर से नजर डालते हैं तो Tomorrow I इसमें am जो having panel inspection. है ना? Just day after tomorrow on 6th I am having panel inspection. I हाँ have जी सर। already prepared my competency based lesson plan, and हाँ जी I सर। have today what you have taught. I have already generated lesson plan from हाँ this जी tool. सर। I जी will सर। put both. And if at that time they question that this is not right, then what is the meaning of this training? हाँ सर, मैंने यही बता रहा हूँ कि जो हमने जनरेट किए हैं लेसन प्लान्स, एक बार आप अगर इन पर नजर डालते हैं तो इसमें डायरेक्टली जो मैंने इससे बोला था कि टेल मी अबाउट द शिवाजी महाराज एंड दैट ऑल, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे वो नहीं दिया कि ये उनका जन्म हुआ था, ये हुआ था, तब हुआ था। अगर हम उस चीज को डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो मतलब एक तरह से हम उसी पर निर्भर हो गए, हमारी जो अपनी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो टूल है ये आपको बस सर अब तो अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना ये लेसन प्लान, Yes, why not? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में हमें यही तो That सिखाया is जा what, रहा है कि हाउ sir, कैन द I have already filed. नहीं है नहीं ना? द ट्रेनिंग इज सर। द मेन एम ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू हाउ टू जनरेट लेसन प्लान इफेक्टिवली बाय एआई टूल। जी सर, Digital सर pattern बिल्कुल होती है ना? मोटिव मोटिव We are यही है। using मतलब सर एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल उस पर रिलाई थोड़ी, मतलब सर उस पर निर्भर नहीं है ना हम। जो आप अगर इस पर नजर डालेंगे तो उसमें ये नहीं बोल रहा कि यही आपको बताना है, उसमें हमारे पास मैनिपुलेट कर पा रहे हैं हम, वो एक तरह से मुझे आइडिया दे रहा है, उसके साथ अपने फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, तो वो बिल्कुल वो ये नहीं दे बोल रहा कि आप यही चीज पढ़ाओ, इसीलिए तो इसमें एडिटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है सर। तो यही प्रेजेंट टाइम में सर यही है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ किस तरह से और इफेक्टिव काम कर सकते हैं। हाँ तो सर ये जनरेट करके उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको तो जी फिर सर बिल्कुल कर सर। सकते हैं ना आगे। बिल्कुल सर, अल्टीमेट मोटिव यही है, वरना सर अगर हम बिल्कुल इसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो फिर हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग और समझ खत्म हो जाएगी ना सर, बिल्कुल।
नहीं, अगर ये डिजिटली लेसन प्लान है बिल्कुल परफेक्ट है, तब तो फिर हम इसको फाइनलाइज मानेंगे। परफेक्ट है सर, तो फाइनलाइज अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग मानेंगे ना सर, क्योंकि ये तो हमें कुछ वेरिफिकेशन दे नहीं रहा कि मैं बिल्कुल आपको सही दे रहा हूँ। हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, हम भी नहीं, सर इसी नॉलेज। वो तो हम सर स्टडी करेंगे ना जनरेट हाँ करने के हाँ जी बाद। सर, बिल्कुल सर। हम्म। हाँ सर, तो आई थिंक सर द टाइम इज रनिंग आउट, सो हम ब्रेकआउट सेशन कर लेते हैं सर, तो जो भी डाउट्स होंगे या जो भी क्वेरीज होंगी तो वी विल ट्राई टू फिक्स सॉल्व देम। ओके सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर। जो भी अभी तक आपने समझाया ना सर, जैसा हाँ मैडम ने हाँ कहा कि एक फ्लो चार्ट के हाँ फॉर्म जी, में जो है बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल या सर, फिर बिल्कुल सर। अगर हो सके तो वापस से क्या है, एक ब्रीफली मतलब कि ब्रीफली में समझा दीजिए, ब्रीफिंग कर दीजिए इसकी। बिल्कुल सर, मैं ब्रेकआउट सेशन के बाद एक बार इसको समराइज करने के लिए फिर से आऊंगा सर, क्योंकि हमारे पास अभी OER के लिए भी थोड़ा टाइम डेडिकेटेड है सर, उसको भी देना है, तो ब्रेकआउट सेशन के बाद मैं फिर से आके इसको ब्रीफ करके क्लोज कर दूंगा सर। ओके सर। ओके। तो थैंक अभी यू सर। कैसे लीव आउट करना है क्या? नहीं सर, लीव नहीं करना, ब्रेकआउट सेशन इन द सेंस कि जो आपके डाउट्स हैं अभी, जैसे अभी 4 दिन में हुए हैं उसी तरह से क्लियर करेंगे, या जो भी असेसमेंट है वो करेंगे सर। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच सर। जी गुरप्रीत जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ सर, हाँ जी एक्चुअल सर। में ना, हाँ, अमन सर से बात कर रहा था। हाँ 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 सर जी मैं सर। ये कह रहा था, जैसे मैंने ये फीचर हम देख रहे थे कि हाँ जी सर। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में हम इसका यूज कर रहे हैं। जब हाँ हम जी। अपने स्टूडेंट से घर बैठे हैं और दूर है, ऑनलाइन हाँ क्लास हाँ नहीं जी। है, तो मैं अपने हाँ बच्चे को कोर्स में एनरोल करवाना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। जी, बिल्कुल सर। तो हाउ वी कैन डू दैट कि जनरेट आईडी हर एक बच्चे की हाँ करवानी पड़ेगी ना मुझे? हाँ सर, वो जो भी लिंक्स, जैसे आपने मुझे लिंक सेंड किया था सर, वो हाँ उससे हाँ। जैसे ही मैं लिंक लिंक मेरे पास आएगा ना, तो मेरा नाम वो और वो सब कुछ चीज पूछ के मैं उसमें इन कर दूंगा साइन इन, ठीक है सर। अच्छा, फिर ये पूछ रहा हाँ था, साइन हाँ, मैं इन एक जैसे। सीन सर, वो मैं हाँ। एक बार मैं बता दूं आपको। जैसे मैंने साइन इन कर दिया ना, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे आ गया अब, ठीक है सर। ओके। तो फिर अब जो मेरी आईडी है ना, उसको आप मैनुअली उसमें जो मैंने आपको पीपल दिखाया था उस पे ऐड यूजर करके फिर वो आईडी डालते रहना, फिर वो ऐड होती रहेगी खुद ब खुद। ऐसे करना, मतलब 2 स्टेप में होगा आपका जो एनरोलमेंट होगा, पहले वो लिंक से प्लेटफॉर्म पे, फिर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद फिर जैसे वो बता देगा कि हाँ सर मेरा हो गया, फिर आप उसको मैनुअली ऐड करोगे, ऐड पीपल करके हर मैं एक आईडी पे। समझ गया आपकी बात। हाँ जी। अमन सर, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, जो बच्चे का इंटरफेस होगा, देखो, हाँ जी सर। मैंने आपको एज ए एडमिन भेजा या एज ए हाँ जी। टीचर एनरोल किया, मैं वो लिंक भेज रहा हूँ जो बच्चे का एज ए स्टूडेंट है, तो जी सर। एज ए स्टूडेंट भी वही प्रोसीजर है क्योंकि। नहीं 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 सर, एज ए स्टूडेंट के लिए जो आपके, मतलब कि जो भी आपके फीचर्स हैं वो एडमिन के अलग होंगे, टीचर के अलग होंगे, और बच्चों के लिए बस वो व्यू मोड होगा, उसमें वो कुछ एडिट नहीं कर पाएगा, बस देख पाएगा सर। हम्म। हाँ जी सर, वो ऐसा उस, नहीं है कि आपने जो फाइल दी उसको डिलीट कर दे, क्योंकि उसको उसका राइट एडमिन या टीचर के पास ही होगा सर। उसको अपना यूजर बनाने के लिए हाँ क्या ईमेल की जरूरत पड़ेगी? जी सर, उस लिंक पे जो आपने लिंक सेंड किया है ना मुझे पहला, हाँ जी सर। सबसे फर्स्ट उसी से उसका यूजर आ जाएगा, उसका खोलते ही आप ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि किसी मतलब कि अपनी किसी दूसरी आईडी पर सेंड करके, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वो पूछेगा, तब हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमन जी। ओके सर। ओके सर। सर सर इसमें जो नाउ, रिसोर्स है उसको कैसे जनरेट करना है सर? रिसोर्स का मतलब है सर, आपके जो सिस्टम में फाइल, PDF, PPT जो भी है वो है रिसोर्सेज आपके, आप आपको वो अपलोड करने हैं सर। अच्छा, नहीं जो अब तक भेजी है उनमें से कोई एक फाइल? हाँ जी सर, जो भी फाइल्स आपके सिस्टम में है, जो आपने अभी तक जो वीडियोस बनाई थी 3-4 दिन की वर्कशॉप में, या जो आपने माइंड मैप बनाए थे वो यूज कर लो, वो अपलोड कर सकते हैं सर। और कोर्स के अंदर सर? हाँ सर, वो कोर्स के अंदर ही आएगा रिसोर्स, मतलब फाइल जो है ना वो कोर्स बनाने के बाद ही आएगी, उसके अंदर ऑप्शन से 5, तो उसमें फाइल है 3rd ऑप्शन। सर जैसे लैपटॉप पे हम ये लेसन प्लान जनरेट किया था उसका स्क्रीनशॉट कैसे लें सर? स्क्रीनशॉट के लिए सर आप विंडोज और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना, वो हो जाएगा स्क्रीनशॉट, या विंडोज शिफ्ट और एस कर देना, उससे आ जाएगा सर। विंडो और प्रिंट स्क्रीन से आ जाएगा सर? हाँ जी सर, या दूसरा ऑप्शन है, अगर स्टिच करके क्रॉप करके लेना है आपको, तो विंडोज शिफ्ट और +S। विंडो शिफ्ट और +S। हाँ जी, ओके ठीक सर। है।
ओके सर, थैंक यू सर। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा सर। तो आप जो आपका असेसमेंट दिया हुआ है सर, उसको आप कल 5 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। Okay, I think so we can proceed. ओके, सो आई एम हैंडिंग ओवर माय माइक। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। So, hello, this is Divya Gautam. Firstly, I really want to thank Mr. Shashank and Aman Besla for giving us such a wonderful lecture. And now we are going to delve into the sea of resources from where we can directly get the understanding, from where we can get the lesson plans tasks. So let's start. So हम OER of lesson plans पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने नहीं मतलब I will discuss it. So first is PBS Learning Media. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे resources मिल जाएंगे for different subjects. You can use filter. So PBS Learning Media is a platform from where we directly get so many resources of different subjects like math, science. आपको बस filter में बस डालना है कि आप किस subject को सर्च करना चाहते हैं, व्हाट इज योर टॉपिक, एंड फिल्टर ये रहा। So okay, so next is Kahoot, and here you will make interactive quizzes, और यहाँ पर बहुत सारी quizzes पहले से भी है। We can play these quizzes with students. क्लास में अगर कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर लैब में, तो वहां पर सभी बच्चों को ले जाके लाइव क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी मोर फन, और ये भी हर सब्जेक्ट का मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज एनरिच। इट इज फ्री फॉर यूज, एंड इसमें बहुत सारे गेम्स हैं और related to that particular topic of mathematics. Basically it is based on mathematics. So यहाँ पर सारे गेम्स, सारी एक्टिविटीज आपको मैथ से रिलेटेड मिलेगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म फॉर लेसन प्लान भी है सीनियर सेकेंडरी का। यू कैन गो देयर एंड यू कैन गेट सम कंटेंट फ्रॉम देयर, एंड उस चीज को आप अपनी क्लास में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके, लिंक सबका आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्टोरी वीवर। ये आपको आई एम श्योर आप इस प्लेटफॉर्म को जानते होंगे, अगर नहीं जानते देन इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंडिया में ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेज है दे ट्राइड वो लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस भी, उसमें भी आपको इनका ट्रांसलेशन मिलेगा, एंड देयर आर सो मेनी स्टोरी बुक्स जिनकी स्टोरीज को आप क्लास के लेसन प्लान भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अरविंद गुप्ता टॉयज। इन्होंने चीपेस्ट फिजिकल रिसोर्स बनाने की कोशिश की है। इवन दे क्रिएटेड ग्रेट रिसोर्सेस। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट सी द वीडियो और द स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी गिवन ओवर हियर, और उसके थ्रू आप विद इन 10 to 15 रुपीज वो सारी एक्टिविटी पर्टिकुलर दैट टॉपिक रिलेटेड टू साइंस एंड मैथ्स करा सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन इज माय फेवरेट वन। बेसिकली दिस इज स्वयं कोर्स, जो आपको बहुत ग्रेट अंडरस्टैंडिंग कराएगा कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट से गेम को कनेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। इन्होंने अपना खुद का कोर्स क्रिएट किया है और ये कोर्स IIT बॉम्बे का है। नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनली और नेशनली कैसे लेसन प्लान्स बने हैं। सो एज यू विल गेट आइडिया कि अच्छा वहां पर ऐसा होता है, कैन आई एड सम पॉइंट इन अवर लेसन प्लान एज वेल। दिस वन इज एलिसन एंड इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप एनरोल हो और ये आपको लेसन प्लान को और एनहेंस करने का बताएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सो लेट मी इनवाइट अंकिता फॉर द क्लोजर।
Thank you so much, Divya. By now, I hope this workshop has been very informative and inspiring for you all. We are really thankful to you all for attending this 5-day workshop and having patience and dedication to learn more after completing a day in school. I know everyone is very tired, and I stand in awe here that the passion and enthusiasm that each one of you have displayed through this workshop. The knowledge and skills have gained here are not just tools, they are the building blocks for transformative education experience. As you all return to the classroom, this potential lies within you and will impact what you make by integrating these digital pedagogy to your teaching practice. So I urge all the participants to continue exploring, experimenting, and innovating your classrooms. Collaborate with your colleagues, share your experiences, and support each other in this digital journey. Together, we can create an educational environment where every student thrives, achieves, and to their fullest. Let this workshop be a stepping stone and a catalyst for the change. Thank you for your active participation and your insightful contributions and your unwavering commitment to the future of education in Navodaya School. May you all continue to inspire and inspired in your noble pursuit of shaping young minds. Also, one important information that certificates will be released next week and sent to you all through mail. Grading will be based on the assessment form that we share every evening with you. So kindly make sure you have submitted all the assessment forms for all 5 days. Please make sure that your attendance is marked for every day. And a feedback form also will be shared with you. I hope you all would be glad to be a part of this workshop. And with this, we will end this workshop. And thank you so much, everyone. Thanks to you, ma'am. Thanks everyone who is organizing here. Thank you so much.